નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. વાત કરીએ સૌથી પહેલા આપણે ઉત્તર પ્રદેશની. તો ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામનું શહેર એટલે અયોધ્યા બુધવારે ફરી એકવાર એક ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષણનું સાક્ષી બન્યું છે, જ્યારે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 2 દિવસની મુલાકાતે અહીં પહોંચ્યા હતા. ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના નાણામંત્રી અને સુરેશ ખન્ના અને કૃષિ મંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી સૂર્ય પ્રતાપ શાહીએ મહર્ષિ વાલ્મીકી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાન મથક પર કેન્દ્રીય મંત્રીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. આ સ્વાગત દરમિયાન અયોધ્યાની સાંસ્કૃતિક ભાવનાના પરંપરાગત સંગીતમય સૂરો ગુંજી ઉઠ્યા હતા. એરપોર્ટથી કડક સુરક્ષા વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રીનો કાફલો સિવિલ લાઇન્સમાં હોટેલ રેસિડેન્સ પહોંચ્યો, જ્યાં ટૂંકા આરામ પછી તેઓ તેમના નિર્ધારિત કાર્યક્રમો માટે રવાના થયા હતા. નિર્મલા સીતારમણની મુલાકાત તેડી બજાર સ્થિત બૃહસ્પતિ કુંડ ખાતે યોજાનાર એક ખાસ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે છે, અને આ પ્રસંગે તેઓ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે મળીને અને ત્યાં પહોંચ્યા હતા. અને આ એમની સાથે મળી 3 મહાન દક્ષિણ ભારતીય સંગીતકારો સંત ત્યાગરાજ સ્વામીગલ, પુરંદરદાસ અને અરુણાચલ કવિની પ્રતિમાઓનું અનાવરણ કરશે. બૃહસ્પતિ કુંડ સંકુલમાં સ્થાપિત આ પ્રતિમાઓ ભારતીય સંગીત, ભક્તિ અને કલાત્મક પરંપરાઓના જીવંત પ્રતીકો છે. આ સંત સંગીતકારોએ ભક્તિ સંગીતને ભારતીય સંસ્કૃતિનો આત્મા બનાવ્યો છે. અયોધ્યાની પવિત્ર ભૂમિ પર તેમની પ્રતિમાઓની સ્થાપના ઉત્તર દક્ષિણ સાંસ્કૃતિક એકતાનું એક અનોખું ઉદાહરણ છે. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ હવે આપણે ઉત્તર પ્રદેશના રામપુરની. તો બુધવારે સમાજવાદી પાર્ટી અને આઝમ ખાન ઘણા સમય પછી મળ્યા હતા. આ મુલાકાત પહેલા આઝમ ખાને ઘણા સપા નેતાઓ સાથે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. આ નારાજગી વચ્ચે મુરાદાબાદના ભૂતપૂર્વ સપા સાંસદ ડોક્ટર એસટી હસન તરફથી એક મોટું નિવેદન સામે આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે જો આઝમ ખાન તેમના ઘરે આવશે તો તેઓ દરવાજા પર નહીં પરંતુ શેરીમાં તેમનું સ્વાગત કરવા જશે. અને ડોક્ટર એચટી હસને કહ્યું કે આઝમ ખાનને ગુસ્સે થવાનો અને બધાને ઠપકો આપવાનો પૂરો અધિકાર છે. તેમને ચોક્કસપણે તેમની ટિકિટ કાપવા પર દુઃખ થયું છે, પરંતુ જો તેમને અગાઉથી જ જાણ કરવામાં આવી હોત તો કોઈ નારાજગી ન હોત. ત્યારે અખિલેશ યાદવ અને આઝમ ખાન વચ્ચેની મુલાકાત અંગે ડોક્ટર એચટી હસને કહ્યું કે હવે બધા ફરી એકવાર એક છત નીચે હશે. ચંદ્રશેખર આઝાદના સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાવાની જે અટકળો છે તે અંગે તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણય સપાના વરિષ્ઠ નેતાઓ પર નિર્ભર છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આજે પણ જો આઝમ ખાન તેમને આમંત્રણ આપે છે તો તેઓ તેમના ઘરે જશે, અને તેમને વિશ્વાસ છે કે આઝમ ખાન ક્યારેક સમાજવાદી પાર્ટીને નુકસાન નહીં પહોંચાડે. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मोहम्मद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे. लंबा अरसा था, कई सारी बातें थी और सियासी हल्फों में तमाम तरीके की चर्चाएं थी. हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं. मुलाकात हुई, तमाम समर्थकों को पता चला, वो भी पहुंचे. उनसे पूछेंगे नाराजगी दूर हुई? बिल्कुल. क्या नाराजगी थी ऐसी जो इतनी नाराजगी तो बड़े नेता हैं, आपस में उन्हीं के बीच हुई है और आपस में अलग बिल्कुल अकेले में बातें हुई हैं. जिस तरीके से माननीय आजम खान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाथ में हाथ डालकर निकले हैं, उससे सभी को लगता है नाराजगी जो थी वो खत्म है. आप लोग भी यहाँ थे, इंतजार कर रहे थे, सांसद नहीं दिखे आपके रामपुर, इससे भी नाराज हैं लोग कि वो नहीं दिखे यहाँ पर. नहीं, हम नाराज नहीं है. हम नाराज क्यों होंगे? हमारे मंत्री जी हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं. आपने कहा कि लगा थोड़ा सा कि वो भी होते तो अच्छा थोड़ा देखो, अब सच बताएं तो हम अगर हमारे साथ ये भाई रहते हैं, अगर एक दिन ना हो हमारे साथ तो हमें बुरा लगेगा. तो वो तो यहाँ के पीएम है, सॉरी एमपी हैं, उन्हें होना बहुत जरूरी था. लेकिन ये भी कहा गया कि आजम खान साहब ने कहा कि जो बात होगी अकेले होगी, कोई बीच में नहीं आएगा. दरवाजे पे हम लोग खड़े, वो भी खड़े हो सकते थे.
लेकिन उनको आना चाहिए था, लगता है आपको? मैं कह रहा कि उनका एक दायित्व बनता था कि आजम साहब कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं, उनको आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब 200, 300 किलोमीटर से आए हैं तो सिर्फ एक मोहब्बत ही में तो आए हैं, तो हम लोग भी तो बाहर खड़े हैं। आज नहीं तो कल मुलाकात होगी, मुलाकात जरूर होगी और करके जाएंगे मुलाकात। नेता है हमारे आजम खान साहब, मोहब्बत की मुलाकात हुई। हम तो मुलाकात करते रहते हैं, लोकल के हम तो हमारी मुलाकात ही क्या है। हम तो थी नाराजगी थी थोड़ी जो दूर हुई है। देखो, अगर देखिए हम लोग आजम खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मिलने यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी एक बात कही कि सारी नाराजगी दूर है, सारी बात खत्म है, लेकिन रामपुर सांसद को होना चाहिए था। और ये बात भी जो पता चल रही है कि अंदर इस बात पर भी चर्चा हुई है, शायद यही वजह है कि वो यहाँ नहीं थे। जब अखिलेश यादव से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया। कितनी सियासत बदलती है, नाराजगी कहाँ तक दूर होती है, और ये मुलाकात आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सियासत में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, रामपुर। તો હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ તો આજે રામપુર જિલ્લામાં વાતાવરણ ખૂબ જ ગરમ હતું. સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ શક્તિશાળી નેતા અને ભૂતપૂર્વ સાંસદ આઝમ ખાનને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. બંને નેતાઓ એટલે કે અખિલેશ અને આઝમ ખાન વચ્ચેની આ મુલાકાત લગભગ 23 મહિના પછી થઈ હતી. બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ મુલાકાત સપા છાવણી માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. યોગી સરકારના મંત્રી ઓમ પ્રકાશ રાજભરે હવે આ મુલાકાતની આકરી ટીકા કરી છે. સુભાષપદ પ્રમુખ અને યુપી સરકારના મંત્રી ઓમ પ્રકાશ રાજભરે રામપુરમાં અખિલેશ યાદવ અને આઝમ ખાન વચ્ચે થયેલી મુલાકાત અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. રાજભરે કહ્યું કે અખિલેશ યાદવ આઝમ ખાનને પાર્ટીમાંથી સાઇડલાઇન કરવા માંગતા હતા, તેથી તેઓ સીતાપુર જેલમાં એકવાર પણ તેમની મુલાકાત લીધી ન હતી. તેમણે એ પણ ઉમેર્યું કે હવે ચૂંટણીનો સમય નજીક આવતા જ અખિલેશે આઝમ ખાનને યાદ કર્યા છે. રાજભરે કહ્યું કે નહીં તો અખિલેશ યાદવે 23 મહિનામાં એકવાર પણ આઝમ ખાનને યાદ કર્યા ન હતા અને હવે ચૂંટણી નજીક આવતા જ તેમને આઝમ ખાન યાદ આવ્યા છે અને તેથી અખિલેશ યાદવને આઝમ ખાનને મળવાની ફરજ પડી હતી. રાજભરે વધુમાં જણાવ્યું કે અખિલેશ યાદવને ડર છે કે આઝમ ખાન અને શિવપાલ સિંહ યાદવ સાથે મળીને એક નવી પાર્ટી બનાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આઝમ ખાન અને શિવપાલ સિંહ યાદવનો સમાજવાદી પાર્ટીમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે. અખિલેશને ડર છે કે સમાજવાદી પાર્ટી ફરીથી વિભાજિત થઈ શકે છે અને આ ડરના કારણે જ અખિલેશ આજે આઝમ ખાનને મળ્યા હતા. આઝમ ખાન સીતાપુર જિલ્લા જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી તેમની આ પહેલી મુલાકાત હતી. जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने दिखा दिया कि सपा में अब भी उनकी हनक है। अखिलेश यादव और तुर्क खेमे को आजम खान ने मजबूर कर दिया। आजम की शर्त थी कि अखिलेश यादव रामपुर में उनकी देहरी पर आकर नाक रगड़ें। आप देखिए, अखिलेश यादव नाक रगड़ने रामपुर पहुंच गए और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आजम खान मजबूत नेता हैं। आजम खान एक समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। उनके साथ अन्याय हुआ तो जेल में 23 महीने लगातार बंद थे। 23 महीने में एक दिन भी समय अखिलेश जी को नहीं मिला, जिसका दर्द खुद आजम खान जी समय समय पर बता रहे हैं। आजम खान ने दिखाया અલીગઢમાં સંબંધોની હત્યા કરવામાં આવી છે. જ્યાં જણાવી દઈએ અને શંકાએ જે છે તે એક માણસને રાક્ષસ બનાવી દીધો છે. ખરાબ ઇરાદાની શંકાએ માનવતાની શરમજનક હત્યાને જન્મ આપ્યો. પત્ની પર ખરાબ નજર રાખવાથી પિતરાઈ ભાઈની હત્યા થઈ છે. પહેલા ગોળી મારી અને પછી કુહાડીથી તેનું ગળું કાપી નાખ્યું અને તે પણ એ જ ઘરમાં જે એક સમયે હાસ્યથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. અલીગઢની આ વાર્તા ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે જો શંકા ઝેર હોય તો તેનો એક જ છોડ છે, મૃત્યુ. રિપોર્ટ જુઓ અને સંપૂર્ણ વાર્તા સમજો. रिश्तों का कत्ल, मौत की पटकथा, पहली गोली फिर कुल्हाड़ी, 5 घंटे शव के पास बैठा रहा आरोपी। जहां भरोसा खत्म वहां रिश्ते की लाशें मिलती हैं।
शक वो जहर है जो इंसानियत को मारता है। रात 2:30 बजे का वक्त, हरदुआगंज थाना क्षेत्र के रहसोपुर गांव में हर कोई अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उसी रात बंटी नाम के एक शख्स ने ऐसा गुनाह किया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। बंटी अपने ममेरे भाई के साथ घर में सो रहा था। अचानक घर से आई गोली की आवाज ने सबको चौंका दिया। पत्नी और बच्चे जब ऊपर पहुंचे तो सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक तरफ कमरे में ममेरे भाई की लाश पड़ी थी, सिर के पास खून का समंदर और दीवारों पर छिटकी गोलियों की गंध। मिली जानकारी के मुताबिक बंटी के अंदर शक का ऐसा तूफान उठा कि हत्या के बाद बंटी ने कुल्हाड़ी उठाई और जो बचा था वो भी खत्म कर दिया। पहले गोली, फिर कुल्हाड़ी से गला काटा और शव के पास 5 घंटे तक बैठा रहा। न भागा न छिपा, बस अपनी हैवानियत को निहारता रहा। यहाँ एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत ही पहुंचकर यहाँ क्राइम सीन को सिक्योर किया गया। फील्ड यूनिट को यहाँ बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा मौके का मुआयना किया गया। इसके अलावा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना हरदुआगंज पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था। सुबह गांव वालों को जब इस खौफनाक वारदात की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। हर कोई पूछ रहा था आखिर वो शक इतना गहरा कैसे हो गया कि इंसानियत ही खत्म हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बंटी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आया कि बंटी को अपने ममेरे भाई पर शक था कि वो उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है और उसके दुश्मनों से भी मिला हुआ है। कहा जा रहा है कि आरोपित पहले भी हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है। वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर ससुराल में रह रहा था, लेकिन इस बार उसका जुनून और शक दोनों ने मिलकर एक रिश्ते को मिटा दिया। हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर रिश्तों के साथ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बताते चलें कि आरोपित बंटी ने अपने ममेरे भाई देबू की हत्या कर दी। बंटी जो कि हत्या के एक मामले में पहले भी जेल जा चुका है और वह बुलंदशहर के थाना पासू क्षेत्र का रहने वाला था और फिलहाल थाना हरदुआगंज क्षेत्र के रहसुपुर में अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहा था। ससुराल के पास ही बंटी की ननिहाल है, जहाँ पर उसका ममेरा भाई देबू भी रहता था और अक्सर दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, मिलना जुलना था। लेकिन अचानक से बंटी को अपने ममेरे भाई देबू पर यह शक हुआ कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता है और साथ ही जो उसके दुश्मन थे उनसे मिला हुआ है। इसी के चलते बंटी ने देबू को अपने घर बुलाया और घर बुलाकर जब जिस समय घटना को अंजाम दिया गया उस समय देबू और बंटी एक कमरे में ऊपर सोए थे और जो बंटी की पत्नी है बच्चों के साथ वह नीचे वाले फ्लोर पर सो रही थी। अचानक से बंटी रात को उठता है और देबू की गोली मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वह उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है, जिससे कि जो परिजन थे बंटी के वो अभी दहशत में आ गए और उन्होंने पुलिस को जब सुबह हुई तो इसकी सूचना दी। हालांकि आरोपित वहां से भागा नहीं और वहां तकरीबन 5 घंटे शव को निहारता रहा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने हत्या आरोपित और जो कुल्हाड़ी थी, तमंचा था, उसको मौके से बरामद कर लिया और आरोपित को जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी घटना की बजाय अपने जो मित्र था, जो भाई था, उस पर शक करना ही बताया जा रहा है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कह रही है कि काश उस रात मैंने उसे रोक लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शक ने पहले ही सब खत्म कर दिया था। लोगों के बीच सिर्फ एक ही सवाल, क्या शक इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपने ही खून का कत्ल कर दे? खैर, अलीगढ़ की इस वारदात के बाद से लोग ये भी कह रहे हैं कि रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है, लेकिन जब उस नींव में शक दरार बन जाए तो दीवार नहीं जिंदगियां ढह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ઝાંસીથી આવેલા સમાચારે સંબંધોના પાયા હચમચાવી નાખ્યા છે, જ્યાં દાદા દ્વારા પૌત્રની હત્યાએ લોહીના સંબંધોને શરમાવ્યા છે। એક એવો ગુનો કે માનવતા પણ સાંભળીને ધ્રુજી ઉઠે। હવે કલ્પના કરો કે જો એ જ હાથ જે નિર્દોષ બાળકને પકડીને ખવડાવતા હતા તે જ હાથ હવે ગુનેગાર બની જાય તો શું થાય? ગામ લોકોને વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતો કે જેના ખોળામાં મુકેશ રમતો હતો તે વ્યક્તિએ જ તેને સુવડાવી દીધો હતો અને એ જ હાથ જેણે તેને રમકડા આપ્યા હતા તેણે તેનું ગળું દબાવી દીધું હતું।
લોકો કેવી રીતે સંપત્તિથી આંધળા થઈ જાય છે, પોતાના પ્રિયજનોના દુશ્મન બની ગયા છે, તે જોવા માટે આ ખાસ રિપોર્ટ જુઓ. एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को कलंकार कर दिया है। जी हां, लहचूरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां 4 तारीख को दादा ने एक अपने पोते की ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये मामला जब संज्ञान में आया, जब लहचूरा पुलिस ने दादा सरमन से पूछताछ की और उससे पूछा कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब लड़के की बॉडी उनके ही घर के भूसा में मिली थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दादा ने ही 100 रुपए की चोरी के चक्कर में अपने पोते की गला दबाकर हत्या कर दी है। फिलहाल 24 घंटे के अंदर झांसी पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है और अब दादा को जेल भेज दिया है। वीडियोनाथ मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर परिवार के ही कुछ सदस्यों से पूछताछ शुरू की और तभी सामने आया वो सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 4 तारीख को एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसको जब थाना अध्यक्ष द्वारा और गाँव लेवल सर्च किया गया तो उस बच्चे की डेड बॉडी घर में ही मिली थी, जिसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसकी 5 तारीख को पोस्टमार्टम हुई थी। पोस्टमार्टम उसके गला दबाकर हत्या करने का बात प्रकाश में आया था। उसके बाद से उसको तरमीम कर दिया गया था। उस सिलसिले में पूछताछ सभी जगह से की जा रही थी, तो उसमें ये 7 संख्या की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें जानकारी में आया कि उनका जो मृतक लड़का है, उसका जो दादा है सरमन कल्लू, उसने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया कि उसने ही अपने जो नाती है उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। हत्या किसी बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि मुकेश के अपने दादा सरमन ने की थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सरमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबको झकझोर दिया। सरमन ने बताया कि उसका पोता अक्सर उसकी जेब से पैसे निकाल लेता था और अपनी मां को दे देता था। घर में इसी बात को लेकर रोज झगड़े होते थे और फिर गुस्से के अंधेपन में उसने अपने ही पोते की जान ले ली। हत्या के बाद
હવે આપણે આગળ વાત કરીએ અને નજર કરીએ એક બીજી કહાની તરફ. જ્યારે પ્રેમ સમજાવવા જે બંધનો સાથે અથડાય છે ત્યારે એક ખૂનામરગી શરૂ થઈ. ત્યારે ખોટા અભિમાનના કાવતરામાં દટાયેલી એક પ્રેમ કથાનો અંત આવ્યો. ઉત્તર પ્રદેશના સોનભદ્રમાંથી એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેણે ફરી એકવાર સંબંધોનો અર્થ અને સન્માનના નામે થયેલા જે ગુનાઓ છે તે વિશેનું સત્ય ઉજાગર કરે છે. આ કિસ્સો 3 રાજ્યો બિહાર, ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશને જોડે છે. અર્થ જ્યારે પ્રેમ સરહદો ઓળંગી ગયો અને નફરત પણ સીમાઓ ઓળંગી ગઈ ને જ્યારે સન્માનના નામે સંબંધો લોહીથી રંગાયેલા હોય છે ત્યારે તે ફક્ત કાયદાનો પ્રશ્ન નથી પણ વિચારવાનો પણ પ્રશ્ન છે. સોનભદ્રની આ વાર્તા આપણને કહે છે કે જ્યારે પ્રેમને પાપ માનવામાં આવે છે ત્યારે માનવતા પોતે જ શરમજનક બને છે. જુઓ અને સમજો આ ખાસ રિપોર્ટ. प्यार जब समाज से टकराया तो बहा खून का दरिया, झूठी इज्जत हवाला, रची खून की साजिश, चेहरा खून से लथपथ, शरीर पर गोली के निशान, कातिल कोई और नहीं लड़की का अपना भाई. यूपी के सोनभद्र का वही जंगल जहां 24 सितंबर की सुबह ग्रामीणों की नजर पड़ी एक युवती के शव पर, चेहरा खून से लथपथ, शरीर पर गोली के निशान और चारों तरफ पसरा खौफनाक सन्नाटा. किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी के अंत की दास्तां है. मामला सोनभद्र के हाथी नाला थाना क्षेत्र का है जहां पुलिस को एक अज्ञात युवती का शव मिला था. तफ्तीश शुरू हुई और अब एसओजी और स्थानीय पुलिस ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया. खुलासा इतना चौंकाने वाला कि सुनकर इंसानियत भी कांप उठी. सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक मृत युवती और युवक दोनों बिहार के पटना के रहने वाले थे. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने गुजरात जाकर शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता लड़की के घर वालों को मंजूर नहीं था और फिर रची गई इज्जत के नाम पर साजिश. लड़की के भाई ने अपनी बहन को फोन किया, कहा अब कोई दिक्कत नहीं, घर लौट आओ, हम शादी करा देंगे. बहन को अपने भाई पर भरोसा था. वो प्रेमी के साथ मिर्जापुर पहुंच गई, लेकिन ये विश्वास उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हुई. मिर्जापुर से दोनों को एक 4 पहिया वाहन में बैठाकर सोनभद्र लाया गया. रास्ते में बरकछा मोड़ के पास एक और युवक को गाड़ी में बैठाया गया और जैसे ही गाड़ी हाथी नाला जंगल के पास पहुंची, पहले से तय प्लान के मुताबिक दोनों को गोली मार दी गई. प्यार की कहानी एक झटके में खून से लथपथ त्रासदी बन गई. एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ था. उस शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई. इसमें सर पे उसके चोट आई थी, ये पाया गया था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में. इसके बाद उस शव की पहचान करने की काफ़ी प्रयास किया गया था और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस क्रम में हमने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद आरोपियों ने युवती के शव को हाथी नाला जंगल में फेंक दिया, जबकि युवक की लाश को दुद्दी थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाया गया. दोनों की हत्या इतने ठंडे दिमाग से की गई थी कि पुलिस को शुरुआत में कोई सुराग तक नहीं मिला. पुलिस ने आज दोहरे हत्याकांड मामले का खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि मुन्नी गुप्ता और दुखन साव दोनों आपस में प्रेम करते थे और दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिजनों को यह मंजूर नहीं था, जिसको देखते हुए दोनों प्रेमी जोड़े गुजरात भाग गए थे. वहीं भाइयों के द्वारा यह आश्वासन देकर उनको बुलाया गया कि वापस आ जाएं और उनकी शादी करा दी जाएगी. लेकिन जब दोनों प्रेमी जोड़े सोनभद्र पहुंचे तो भाइयों ने ही उनकी हत्या कर दोनों के शव को अलग अलग थाना क्षेत्रों में फेंक दिया. वहीं पुलिस को शव मिलने के बाद पुलिस ने शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई, जबकि दुखन साव के बड़े भाई ने तहरीर दे करके मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद यह मामला धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा और पुलिस आरोपियों तक पहुंची. वहीं आज पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस का कहना है कि इन्हीं दोनों सगे भाइयों के द्वारा
हत्या करके शव को हाथीनाला थाना क्षेत्र और लड़के के शव को बुद्धि कोतवाली क्षेत्र में फेंक दिया गया था। बहरहाल पुलिस के द्वारा इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। वक्त बीता, लेकिन गुजरात के युवक के भांजे ने गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं से पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। दुद्धि में मिले नरकंकाल, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की डोर धीरे धीरे पुलिस को उस गुत्थी तक ले आई जिसने सबको हिला दिया। एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल डंप डेटा के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों युवती के ही परिवार के सदस्य हैं। बाकी परिजनों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की डोर 3 राज्यों बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यानी प्यार ने जहां सरहदें पार की, वहीं नफरत ने भी सीमाएं लांघ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.